So let us start studying the very important chapter, that is some basic concept of chemistry. Okay, and move. Okay, so let's move to this chapters. That is the mole concept is a topic that is coming in this other chapters. Other topics has been deleted from this chapter. That is some basic concept of chemistry, and we will be going to study that is the mole concept. What is mole? Mole concept is a topic from this chapter. Okay, and that is in our syllabus that we need to study thoroughly. The other topics have been removed, so we have cut that one also. Okay, so let's move to the atomic mass. What is mole? We need to study the mole concept. What is actually the mole concept? What do you mean by the word mole? Tell me, what do you mean by the word mole? Mole. We need to understand this. No, this is not something small. Mole is actually a number that is going to have 6.022 into 10 raised to the power 23 10 raised to the power 23 as a value. Okay, oh, and this value is very very huge, or we can say that this cannot exist for the something that is going to have some bigger size that is visible to us, because this is very very large value, 6.022 into 10 raised to the power 23. So this value is very very large, and this cannot really exist actually. Okay, so this value is applicable for the mass or points, says that particles that is going to have the very very small in size, that is going to have very small size, and that can be atoms slash molecules or ions. So that is mole. If we are having some atoms that is equivalent to 6.022 10 to the power 23. For example, if you are going to have atoms of sodium, and that you have the value of 6.022 into 10 to the power 23. Okay, so that number of atom will be considered as mole, 6.022 into 10 to the power 23. And who gave this number to you? Actually, where does this number come from? This number is very very large and nobody can count this one. So where does this number come from? 6.022 10 to the power 23. If we have some particles that is equivalent to 6.022 10 to the power 23, that will be considered as 1 mole. So if I'm saying that I have 1 mole atoms of sodium. So 1 mole of sodium means I am going to have 6.022 into 10 to the power 23. And what is the need of actually this number? Actually, we need to understand this one. This is very important. Okay. And if you feel any doubt regarding to this, any concept anywhere, okay, if I'm teaching you, if you are not able to understand something properly, please let me know. Okay, Aram. So let's understood this one 6.022 to 10 to the power 23. We have to study this one also. This is the relative mass, atomic mass. No, mole is not a sodium. Mole is actually the number that is equal to 6.022 into 10 raised to the power 23. Okay, mole is a number that is equals to 6.022 into 10 raised to the power 23. And from where does this number comes from? From where does this number come from? We have to understood this whole atomic number, atomic mass, gram atomic mass. We need to understand this one. Okay, and what is the need of this number? That is also very important. Mole is very important. Stoichiochemistry is very important portion of the chemistry, and we need to study this one because so many numerical problems is being solved by this problem. Not only from this chapter, there are so many chapters that are going to have problems related to this mole concept. So this mole concept should have another chapter. We can say that we have kept this one in some basic concept of chemistry, but in every chapter we see that problems will be there. Okay, so in this atomic mass, we simply understand what is actually the atomic mass. So you can say that the word itself has a meaning, atomic mass. It means that the mass of an atom. Okay, the mass of an atom is considered as its atomic mass. But actually, what does this statement means? That if 12 is the atomic mass of carbon, or if I'm saying that what do you mean by the word atomic mass, or what does the word atomic mass gives you information? For example, if I'm saying that the mass of carbon is 12 AMU, what does this statement means? So this statement means that it is the number
atomic mass, if I'm saying that the mass of carbon is 12 AMU, or if I'm saying that the mass of sodium is 23 AMU, what does this statement means? This statement simply means, Aram, this statement simply means that that this sodium is 23 times heavier than the mass of 1/12 of carbon 12 atom. And what does this statement means? मैं रिपीट कर रहा हूँ. ये कह रहा है कि सोडियम जो है वो 23 टाइम्स ज़्यादा हैवियर है. सोडियम जो है वो 23 टाइम्स ज़्यादा हैवियर है देन कार्बन के 1/12 पार्ट से. कार्बन एटम जो कार्बन के दो आइसोटोप्स होते हैं. देयर आर टू आइसोटोप्स ऑफ कार्बन. One is carbon 12 and other one is carbon 14. So I'm talking about this one. So this is actually 23 times. If I'm saying sodium is going to have the mass 23, so it simply means that it is 23 times heavier than the mass of 1/12 of carbon atom. And what does this statement means? 1/12 of carbon 12 atom. So let's understood with this statement. This is the carbon 12. Okay, this is carbon 12 atom. Okay, and if I cut it into 12 pieces, then one piece will be going to have 1/12 mass. Okay, this will be 1/12 mass of one piece. One piece of carbon atom will going to have 1/12 mass of the total carbon atom. Okay, one piece. Okay, if I cut it into 12 part. Okay, so that one piece is called 1/12 part of carbon 12 atom is called 1 AMU. 1 AMU. Okay, so why 1 AMU of carbon 12 atom means it is the mass of carbon 12 atom, but it should be 1/12 part of 1/12 part. Okay, अब समझ में ये नहीं आया कि कार्बन एटम को ही क्यों रखा गया. पहले सवाल आया, फिर उसका 1/12 पार्ट ही क्यों लिया गया, और फिर कार्बन की ज़रूरत क्यों पड़ी. तो इसको भी थोड़ा सा समझते हैं हम लोग. लेट अंडरस्टूड दिस वन. अगर मैं बोलता हूँ अगर मैं बोलता हूँ कि कोई एक हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है. लेट सपोज करो दिस इज़ अ टेप दैट इज़ आई एम हैविंग राइट नाउ. ओके, एंड दिस सेलो टेप. एंड शुड आई मेजर दिस वेट? इसका मुझे वेट वहाँ पे मेजर कर सकता हूँ मैं जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी हैवी मशीनरीज का वेट होता है जो कि बहुत ज़्यादा हैवियर है. या मेरे पास एक गोल्ड कॉइन है, या मेरे पास एक ईयर रिंग है, या मेरे पास एक कोई भी गोल्ड की रिंग है, ठीक है. क्या मैं उसका वेट वहाँ पर जा कर के मेजर करूँगा जहाँ पर बहुत बड़े बड़े हैवियर ट्रक का वेट होता है, जहाँ पर 1-2 kg का तो पता ही नहीं चलता कि 1-2 kg कम या फालतू? क्या मैं वहाँ पे कर सकता हूँ उसका वेट? नहीं कर सकता. बेवकूफ़ी है. अगर मैं वहाँ पे करूँगा तो मेरा एक्यूरेट वेट नहीं आएगा, ठीक है. और इसी तरह से जहाँ पर मैं मेजर करता हूँ गोल्ड को, जो वेइंग बैलेंस है गोल्ड को मेजर करने के लिए, क्या मैं उस जगह पर उस मशीनरी को वेट कर सकता हूँ जहाँ पर मतलब बड़ी बड़ी मशीनरीज को वेट कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि मेरा जो वेइंग बैलेंस है वो छोटी चीज़ को मेजर करने के लिए बनाया गया है, वो बहुत एक्यूरेट नापेगा, ठीक है. तो ऐसा नहीं है, वी कैन नॉट मेजर दिस वन. इन द सिमिलर वे हमें भी एटम के मास को मेजर करने के लिए कुछ ऐसा छोटा सा चाहिए जिससे हम कंपेयर कर सकें. एक्चुअली जब भी हमें कोई चीज़ मेजर करनी होती है, व्हेन वी आर मेजरिंग समथिंग, वी नीड सम स्टैंडर्ड यूनिट. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हैव टू मेजर द लेंथ ऑफ योर रूम, you will find you will have a means measuring scale, and you start measuring from that. Okay, the length will be measured from that one. Okay, so this is my question, that what are you doing actually when you are measuring something? You are just comparing your length that you need to measure with the standard unit. आप उस स्टैंडर्ड यूनिट से मेजर कर रहे हैं, जो हमने आर्बिट्री चूज़ किया है. फॉर एग्जाम्पल, अ लेंथ दैट इज कॉल्ड 1 मीटर इज एन आर्बिट्री चूजन लेंथ. वो एक आर्बिट्री चूजन लेंथ है, और उसको हमने खुद ने चूज़ किया है कि आज से इतने मीटर लंबी लेंथ को, या इतनी लंबी डिस्टेंस को हम लोग आज से 1 मीटर कहेंगे, और जितनी भी लेंथ वी आर गोइंग टू मेजर, वी विल बी गोइंग टू कंपेयर दिस वन. अगर ये 1000 टाइम आ गया, वी विल कंसिडर इट इज़ 1 किलोमीटर.
अगर ये 20 टाइम्स आया तो 20 मीटर, इफ़ इट इज़ कम 1/10 पार्ट आया तो वी विल कंसिडर इट एज डेसीमीटर, मतलब इस तरह से हम लोग, या 100 पार्ट आया तो 1 सेंटीमीटर। सो हम लोग क्या कर रहे हैं एक्चुअली, वी आर जस्ट कंपेयरिंग हमारी जो स्टैंडर्ड यूनिट हम लोगों ने ली है दैट इज़ 1 मीटर, हम लोग जब भी लेंथ को मेजर करते हैं तो हम लोग उससे कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से हम लोग एक आर्बिट्री हमारे पास वेट है जिसको हम लोग 1 kg कहते हैं, आज से हमने उसको स्टैंडर्ड क्वांटिटी बना लिया कि भाई इतने बड़े वेट को आज से हम 1 kg कहेंगे, और इसके जितने भी टाइम्स कोई चीज़ होगी आज से उतना। जैसे मैंने आप मार्केट गया, आपने कहा कि 5 kg फ्रूट है मेरे पास, तो उसका क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ उसका सिंपल सा मतलब हुआ कि भाई आपके पास 5 kg है, मतलब 5 टाइम्स ऑफ दैट वेट, दैट स्टैंडर्ड वेट दैट वी हैव, that is 1 kg, 5 times of 1 kg. It simply means if you have a weight of 0.5 kg, it means half of 1 kg. Simply na. So we have the standard. Actually, when we are measuring the weight or measuring something, we are just relating that one, we are just comparing that one with our standard units. In the similar way, when we are just comparing, okay, in the similar way, when we are just comparing the weight of an atom, so we must have some special quantity that we must keep it as standard unit, जिससे हम कंपेयर कर सकें। भाई मैं बोल रहा हूँ कि कार्बन का जो मास या नाइट्रोजन का जो मास है वो 7 है, वो 7 क्या है, किसके कंपैरिजन में है। सो हमारे पास उतना छोटा स्केल होना चाहिए ना, कोई चीज़ से तो कंपेयर करेंगे हम लोग। तो हमने क्या किया, कार्बन 12 को स्टैंडर्ड यूनिट मान लिया। उससे पहले और भी स्टैंडर्ड यूनिट माने गए थे, ऑक्सीजन को माना गया था, सबसे पहले हाइड्रोजन को माना गया था, फिर उसके बाद ऑक्सीजन को माना गया, लेकिन फाइनली जो है कार्बन को एक्सेप्ट कर लिया गया। कार्बन जो है आज से स्टैंडर्ड यूनिट रहेगा। और कार्बन को पूरे एटम को नहीं माना था, एक्चुअली उसके भी 1/12 पार्ट को, कि कार्बन का जो मास होगा उसका जो 1/12 पार्ट होगा उससे हम लोग कंपेयर करेंगे। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। सो इसलिए हमने माना कि कार्बन का एक्चुअल में ये 1/12 का केस कहाँ से है, 1/12 का केस भी यहाँ से है कि कार्बन का जो एटम है वो थोड़ा बड़ा साइज़ में है, ठीक है। अब वो बड़ा साइज़ में है, ठीक है। लेट सपोज करो ये मेरे पास एक पेन है, अब मैंने 1 मीटर को इस एक स्टैंडर्ड यूनिट मान लिया, या मैंने सपोज करो कार्बन के एटम को मैंने एक स्टैंडर्ड यूनिट मान लिया कि कार्बन का एटम जो है आज से हम लोग कंपेयर करेंगे, क्योंकि कार्बन बहुत इजीली अवेलेबल है, जल्दी से, मतलब उसका कार्बन के कंपाउंड जब बनते हैं तो उसका जो है वेट चेंज नहीं होता है। तो मतलब हम लोग आज से मान लिया कि कार्बन जो है आज से स्टैंडर्ड यूनिट है। तो फिर ये 1/12 कहाँ से आया, 12वां हिस्सा क्यों रखा, पूरा कार्बन का एटम को रख लेते, क्योंकि हम लोग ये चाहते थे कि किसी का जब किसी का वेट को मेजर करे तो वो डेसिमल्स में नहीं हो पहले, मतलब पहला सबसे छोटा वेट जो हो वो सबसे डेसिमल्स में नहीं हो। क्योंकि अगर हमने कार्बन का वेट रख लिया तो कार्बन के वेट के बराबर हाइड्रोजन के 12 एटम चढ़ते हैं। when we are having the carbon atom in this weighing portion and we are just comparing with the hydrogen, so we find that कि 12 हाइड्रोजन एटम इज इक्वल्स टू 1 कार्बन एटम। तो 12 हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो एक कार्बन एटम के बराबर हुआ। अगर मैंने एक हाइड्रोजन के एटम, एक कार्बन के एटम को पूरा स्टैंडर्ड मान लिया होता कि भाई ये है, तो ये तो 12 हाइड्रोजन के बराबर हो गया, 12 हाइड्रोजन के बराबर हो गया, मतलब सो अब मैं बोलूँ कि 1 कार्बन एटम इज इक्वल्स टू 12 हाइड्रोजन एटम्स, 12 हाइड्रोजन एटम्स 12 हाइड्रोजन एटम्स के बराबर है। ऐसे तो एक हाइड्रोजन कितने उसके बराबर होगा, एक हाइड्रोजन एटम तो भाई फिर इसके स्टैंडर्ड से कम हो जाएगा, मतलब वो तो और भी कम हो जाएगा जो हमने स्टैंडर्ड माना है। सो इसलिए हमने क्या कहा कि हमने सोचा कि भाई काम करते हैं, 12 हाइड्रोजन सबसे छोटा है, हाइड्रोजन से छोटा कोई भी एलिमेंट नहीं है, कोई एटम नहीं है हाइड्रोजन से छोटा। तो एक काम करते हैं कि 1/12 पार्ट जो होगा कार्बन का वो बराबर होगा मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। 1 हाइड्रोजन एटम हमने मान लिया स्टैंडर्ड आज से, और इसी को हमने कह दिया कि भाई ये जो है 1 AMU है आज से, इसी को हम 1 AMU कहेंगे। यानी फिर से समझ लो, कार्बन को जब हम लोग कार्बन के एटम को रखते हैं तो उसके बराबर 12 हाइड्रोजन एटम चढ़ते हैं। अब हमने डिसाइड तो पक्का करना है कि कार्बन को ही लेंगे भाई, इससे छोटा हम लेंगे नहीं, हम हाइड्रोजन को नहीं ले रहे हैं, हम कुछ बजाय हम लोग कार्बन को ही लेंगे, कन्फर्म है। सो आपके पास एक पिज़्ज़ा है, उस पिज़्ज़े को 12 लोग खा रहे हैं या 12 लोगों का है वो। सो एक पिज़्ज़ा, एक पोर्शन कितना जाएगा, एक आदमी के पास कितना पोर्शन जाएगा, 1/12 जाएगा। आपके पास एक पिज़्ज़ा है, उसको 12 लोग खा सकते हैं, तो एक आदमी के पास कितना जाएगा, 1/12 पार्ट जाएगा।
सो भाई एक काम करते हैं ना, वो जो 1/12 एक पिज्ज़ा का पार्ट जो गया ना उसी को स्टैंडर्ड मान लेते हैं ना आज से, कि एक आदमी के पास जितना गया आज से वही है भाई, आज से उसी को स्टैंडर्ड मान लिया। तो हमने क्या किया, हमने पूरे पिज़्ज़ा को स्टैंडर्ड ना मान करके उसका जो 12वां पार्ट था उसको स्टैंडर्ड मान लिया। अब कार्बन का अब पिज़्ज़ा का अगर मास, पूरे पिज़्ज़ा का मास बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, स्टैंडर्ड यूनिट्स का 12 टाइम, क्योंकि उसमें 12 पीसेज है वैसे वैसे, क्योंकि हमने एक पीस को माना है ना, तो पूरा पिज़्ज़ा कितने के बराबर हो जाएगा, 12 स्टैंडर्ड यूनिट के बराबर, क्योंकि ऐसे से 12 आ जाएंगे, क्योंकि हमने इसी को स्टैंडर्ड माना है। तो इसी तरह से अगर मैं कार्बन एटम की बात करता हूँ तो कार्बन का एक्चुअल में मास कितना आ जाएगा, 12 AMU, क्योंकि हमने कार्बन के एटम को इटसेल्फ 12 पार्ट में डिवाइड करा है और उसका 1/12 पार्ट को स्टैंडर्ड माना। गॉट इट। खैर इतना बड़ा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है इसमें, हम लोग आगे मूव करते हैं। बस इतना समझना कि कौन सा वाला, मैंने ये बोला कि कार्बन का जो मास होता है एक्चुअल में वो 12 AMU इसलिए रखा गया है, 12 AMU यानी 12 ये है क्योंकि हमने कार्बन के 12 पीस किए हैं और उसका एक पीस को हमने 1 AMU माना है, तो उसका एक पीस 1 AMU, उसके अंदर ऐसे कितने पीसेस आ जाएंगे, 12, तो इसका मास हो गया 12 AMU। यस, दिस इज अ स्टैंडर्ड यूनिट, दिस एटॉमिक मास यूनिट, वी हैव मेड दिस वन एज अ स्टैंडर्ड यूनिट। ओके, जैसे लाइक केली है, इसी तरह से हमारे पास ग्राम्स है, इसी तरह से हमारे पास केजी है, मीटर है, अलग अलग यूनिट से इस तरह से हम लोग जो एटम्स के मास को मेजर करते हैं, मॉलिक्यूल्स के जो मास को मेजर करते हैं वो AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट में मेजर करते हैं, और इसको हम लोग ने AMU बना दिया। समझ में आया? गॉट इट? पक्का? तो आज से हमने क्या बोला, वी हैव कंसीडर्ड दिस वन दैट एटम विल बी कंसीडर्ड, जो एटॉमिक मास होगा दैट विल बी द 1/12 मास ऑफ द कार्बन। ओके, गॉट इट? लेट्स मूव फर्दर। सो इसी तरह से हमने आगे एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमने देखा कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का जो वेट आ रहा है दैट इज़ 12 टाइम्स 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम, दैट इज दिस इज 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम को हमने क्या मान लिया, AMU। सो 32 आया, एक ऑक्सीजन एटम का कितना होगा, फिर 16 होगा। N2 को देखा हमने कि N2 का 28 आ रहा है, तो फिर एक नाइट्रोजन एटम का कितना होगा, 14 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने AMU रख लिया। ओके, गॉट इट? तो हमने हाँ, ये सब लिखना भी है, तुम कॉपी कर सकते हो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। डन, लेट्स मूव फर्दर। सो ऑन फर्दर एडवांसमेंट, हाँ मैं इसको भेज दूंगा, यस आई विल सेंड इट टू यू। ओके, लेट्स मूव फर्दर। ठीक है, सो ऑन फर्दर एडवांसमेंट ऑफ साइंस, ओके, we were able to calculate the value of carbon 12 atom. Okay, we don't have the standard unit, that is very very small. So on further advancement, because we were just doing some experiment, अगर हम लोग को कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग AMU में मास लेंगे, दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, क्योंकि बहुत छोटा है। हम लोग तो जब भी मार्केट में जाएंगे तो हम लोग किस में मास लेके आएंगे, हम लोग किस में लेके आएंगे भाई, ग्राम्स में, जो ग्राम्स में लेके आते हैं हम लोग कार्बन को ग्राम्स में तो लेंगे, ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे 1 AMU लेके आ जाओ, नहीं, वो तो बहुत ही छोटा है। एक कार्बन एटम तो वैसे भी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं है, देयर इज़ नो इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स की इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं, दे आर ऑलवेज फाइंड इन द ग्रुप्स। ठीक है, जैसे हमारे पास सोडियम है, सोडियम को हम लोग एक्सपेरिमेंट में लिखते हैं Na, बट क्या ये Na अकेला होगा, नो, बहुत सारे होंगे। ठीक है, सो 23 ग्राम्स इज द मास ऑफ, हमने माना था कि मोलर मास था, लेकिन बात करते हैं हम लोग किसकी, कि जब फर्दर एडवांसमेंट हुई साइंस की, जैसे फर्दर एडवांसमेंट होती गई साइंस की बेटा, तो हमने देखा, हम लोगों ने इसको कैलकुलेट कर पाए। हम लोगों ने एक स्पेशल टेक्निक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। उस स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से हम लोगों ने एक्चुअल कार्बन एटम का मास निकाल लिया ग्राम्स में, और ग्राम्स में जब हम लोगों ने निकाला तो हमने पाया कि एक्चुअल एक कार्बन एटम का जो मास है दैट इज़ 1.9 × 10⁻³ ग्राम्स।
सोचो भाई ये कितना कम है, 1.9 × 10⁻³ ग्राम्स। हम लोगों ने फर्दर मतलब ये किया और हम लोगों ने पता निकाल लिया कि भाई कार्बन के एक एटम का मास आज से क्या मतलब पता निकाल लिया ग्राम्स में इतना होता है, ठीक है। सो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि कार्बन के एक एटम का मास इतना होता है, तो द मास ऑफ 1/12 कार्बन एटम का ग्राम्स में कितना होगा कोई भाई? अगर पूरे एक कार्बन एटम का 1.99 × 10⁻23 है, तो एक कार्बन तो 1/12 पार्ट इसके 12वें हिस्से का कितना होगा? तो इसको 12 से डिवाइड कर दो भाई। पूरे कार्बन एटम का 1.9 × 10⁻23, तो उसके 12वें पार्ट का कितना होगा? है ना, दैट विल बी, इसको 12 से डिवाइड को, यू विल फाइंड 1.67 × 10⁻24 ग्राम्स विल बी द आंसर। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ओके, गॉट इट। सो हम लोगों ने, और ये 1/12 पार्ट हम लोग निकाला, 12वां हिस्सा जो था, तो ये हिस्से को हमने क्या बोला? AMU, और 1 AMU का ग्राम्स में हमने कन्वर्ट कर लिया, दैट इज इक्वल टू 1.67 × 10⁻24 ग्राम्स। गॉट इट, गॉट इट। ओके, अब सवाल जो है, अब है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा समझने की है, कि भाई कार्बन का मास हमने पता लगाया एक्सपेरिमेंट करके, किस तरह? स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से। अब जब स्पेक्ट्रोस्कोपी कर ली हमने, तो हमने एक कार्बन एटम का मास पता कर लिया और उसको 12 से डिवाइड कर दिया, तो वी फाइंड द 1/12 मास। वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द 1/12 मास ऑफ द कार्बन एटम। ओके, 1/12 mass, and 1/12 mass we know that it is 1 AMU, so we able to calculate that 1 AMU is equals to, in grams it is 1.67 × 10⁻24 grams। ओके, ओके। सो अभी हम लोगों ने क्या किया, एक काम करते हैं, हम लोग ने दिमाग लगाया और सोचने की कोशिश की। थोड़े देर बैठे, साइंटिस्ट ग्रुप में बैठे और उन्होंने सोचने की कोशिश की, यार ये ग्राम्स में है और ये इतना कम है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, रियल में तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो एक काम करते हैं हम लोग इसका उल्टा करते हैं। हम लोग ऐसा करते हैं कि एक एटम का मास जो है 1 AMU द मास ऑफ, ये 1 AMU जो है वो 1/12 कार्बन एटम का मास है, या मैं बोलूँ कि एक कार्बन एटम का मास जो है वो इतना है, एक कार्बन एटम का मास जो है वो इतने ग्राम्स है, ठीक है। सो 1 कार्बन एटम, 1 कार्बन, या मैं बोलता हूँ कि 1.99 × 10⁻⁻23 ग्राम्स is equals to mass of 1 कार्बन एटम। एक काम करते हैं, जो रियलिस्टिक होता है, जो मतलब रियलिस्टिक है, काम करते हैं 1 ग्राम कार्बन लेते हैं और 1 ग्राम कार्बन में देखते हैं कितने एटम होते हैं। सो बताओ, अगर मेरे पास 1.99 × 10⁻23 ग्राम जो है वो एक कार्बन एटम का मास है, तो आप मुझे बताइए कि 23 में, मतलब सॉरी 1 ग्राम कार्बन में कितने एटम्स होंगे? क्या करेंगे? मैं पूछ रहा हूँ बेटा कि अगर 1.99 × 10⁻⁻23 ग्राम्स जो है वो मास है एक कार्बन एटम का, ये हमने एक्सपेरिमेंट से करके पता करा स्पेक्ट्रोस्कोपी में। सो आप मुझे बताइए कि अगर मेरे पास 1 ग्राम कार्बन होते, ठीक है, 1 ग्राम कार्बन होता, तो फिर मेरे पास हाउ मेनी एटम्स इट विल बी इक्वलेंट टू, कितने एटम के बराबर होता है? कितने एटम्स होते हैं? तो सिंपल कैलकुलेशन है। तो आप ये बताइए, इसको 1 ग्राम करने के लिए, इस क्वांटिटी को 1 ग्राम करने के लिए क्या करोगे आप? इसको इसी नंबर से डिवाइड कर दोगे? सो इधर भी आप क्या करोगे, इसको इधर से डिवाइड कर दिए, 1.99 × 10⁻23 ठीक है। आपने इधर डिवाइड किया मैथमेटिक्स के रूल के अकॉर्डिंग, तो इधर भी डिवाइड कर दे। तो आप इसको ऐसे कट करोगे तो यू विल फाइंड दैट 1 ग्राम कार्बन इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है? दैट विल बी इक्वल टू 1/1.99 × 10⁻23 एटम्स के बराबर होगा। इतने एटम्स होंगे उसके अंदर। दिस 23 विल बिकम पॉजिटिव, ओके। और आप इसको करोगे तो यू विल फाइंड समथिंग अप्रॉक्सीमेटली, अगर मैं इसको करता हूँ तो आप देखोगे दैट विल बी 10⁻23 पॉजिटिव अपॉन 1.99 एंड यू कैन सिंपली से दैट
this is 10 into 10 raised to the power 22 you can write here, and this you can write here approximately 1.99. so when you divide it you will find 2.01 approximate into 10 to the power 22. so that will be the number of atoms in 1 gram of carbon. so अब मैंने सोचा कि मैंने दिमाग में ये बात आई कि 1 ग्राम तो यार हर किसी का 1 ग्राम लेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी. एक काम करते हैं, इसका मोलर मास जो हमने इसका एटॉमिक मास वी हैव कंसिडर्ड इट 12 AMU. सो एक काम करते हैं 12 ग्राम में निकालते कितना होता है. 12 ग्राम कार्बन में. सो वी फाइंड इट 12 ग्राम में कितना होगा. तो 12 ग्राम में हम लोग को ने कैलकुलेट करा तो दैट विल बी 1.99 इंटू 10 पावर माइनस 23 इंटू 12 एंड ओके हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दी एंड दैट वी फाइंड हियर इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 to the power 23 एटम्स. तो ये ऊपर जाकर के पॉजिटिव हो जाएगा ना बेटा. ये 2 के अप्रॉक्सीमेट है ना, 2 के अप्रॉक्सीमेट है ये. जब इसको तुम कट करोगे तो दिस विल बी 6.022 एंड दिस 23 विल गोज टू द अपसाइड एंड इट विल बिकम दिस वन. So what we find here that is 12 gram of carbon is going to have 6.022 into 10 to the power 23 atoms. Okay, let's do this experiment with some other atoms also. Okay, let's we find that the molecular mass for the nitrogen atoms. Okay, let's do with the sodium atoms. We find that the molar atomic mass of sodium was found to be 23 gram. 23 AMU. Okay, and what's the value of AMU that we have find that was we have calculated that was 1.67 into 10 to the power minus 24. Okay, grams. In grams. So we can say that the mass of this one will be this one. Okay, got it? समझ में आया या नहीं आया? आराम. मैंने क्या बोला एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना होता है. 23 होता है. ठीक है. AMU एटॉमिक मास यूनिट बिकॉज इट इज 23 टाइम्स द मास ऑफ 112 कार्बन एटम. और AMU की वैल्यू हम लोग निकाली थी कितना आया था 1.67. यहाँ पर हम लोग निकाली थी. यहाँ पर वी हैव कैलकुलेटेड. कहाँ पर कैलकुलेट की थी भाई पीछे. यहाँ पर हम लोगों ने कैलकुलेटेड 1.67 10 पावर माइनस 24 ग्राम्स. ठीक है. ओके, सो अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये हमारे पास इतना जो है मास है. ठीक है, ये हमारे पास किसका मास है. एक एटम का मास है. मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम इन ग्राम्स. फिर से समझो, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना है 23. ठीक है. AMU ये हमने कैलकुलेट किया, एक्सपेरिमेंट करके पता लगाया. AMU की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की थी ग्राम्स के. दैट वाज 1.67 10 पावर माइनस 24 ग्राम्स. सो ये किसका मास है. एक सोडियम एटम का मास. तो मास ऑफ 1 सोडियम एटम का मास ग्राम में कितना है. इतने ग्राम्स है. सो मैं बोल रहा हूँ कि 23 इंटू 1.67 इंटू 10 to the power माइनस 24 ग्राम्स में होता है एक सोडियम एटम. 1 सोडियम एटम होता है बेटा. ठीक है, एक सोडियम एटम होता है. अब अगर मैं पूछूं आपसे कि 1 ग्राम में कितना होगा तो क्या जवाब दोगे. कितने एटम्स होंगे 1 ग्राम में. कैसे कन्वर्ट करोगे इसको. into 10 to the power minus 24. Okay, that is 23 into 1.67 into 10 to the power minus 24. ये हो गया. ये किस में हो गया 1 ग्राम में. अब मैंने क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ एक काम करो बेटा, एक काम करते हैं
यार तुम 23 ग्राम में बताओ, क्योंकि 23 इसका क्या है, एमयू है, 23 एमयू है ना। काम करते हैं, जैसे हम लोगों ने 12 ग्राम कार्बन में पता लगाए थे कि 12 ग्राम में कार्बन में कितने आए थे, 6.022 इंटू 10^23, और हमने 12 क्यों लिया था, क्योंकि 12 जो है उसका एमयू मास था, एमयू में मास था। अभी हम लोग 23 एमयू में क्यों पता लगा रहे हैं, क्योंकि 23 जो है वो एक नंबर है सोडियम के लिए जो उसका एमयू में मास होता है। तो एक काम करते हैं, मैं बोलता हूँ कि 23 का पता लगाओ, 23 ग्राम में कितना होगा, तो 23 ग्राम में कितना आएगा, 23 इंटू 1/1.67 इंटू 10⁻⁻²4, ओके, इंटू 23, गॉट इट। इसको कट करोगे कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, 1/1.67 इंटू 10⁻⁻²4, ओके। अब एक काम करते हैं, हाँ इसको एक काम करते हैं 23 कर लेते हैं और एक 10 अलग से ले लेते हैं, ठीक है, पॉजिटिव हो जाता है ना, अभी भी 24 ही है। अब मैं इसको कट करूँगा ना इससे, तो मेरे को वैल्यू मिलेगी 6.022, ठीक है, 6.022 वैल्यू मिलेगी यहाँ पर, 6.022। सो एक्चुअल में मैंने देखा कि मेरे पास जो नंबर ऑफ एटम्स आए 23 ग्राम्स में, वो कितना आ रहा है, 6.022 इंटू 10⁻23। और ये मैंने सब में चेक किया कि अगर मैंने किसी का मोलर मास, सपोज करो नाइट्रोजन का मोलर मास कितना है, 14 है, मोलर मास छोड़ो, एटॉमिक मास जो है एक एटम का वो 14 है, ठीक है, एमयू 14 एमयू। तो अगर मैं 14 एमयू की जगह पे 14 ग्राम ले लेता हूँ नाइट्रोजन, तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे दैट विल बी 6.022 × 10⁻³ इसी तरह से मैंने मैग्नीशियम को देखा कि मैग्नीशियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 24 होता है। मैग्नीशियम इज गोइंग टू हैव द मास दैट इज 24 AMU। सो अगर मैं 24 ग्राम्स मैग्नीशियम लेता हूँ तो उसके अंदर जो एटम्स आते हैं वो आते हैं 6.022 × 10⁻23 कैलकुलेशन के मुताबिक। ये कोई काउंट नहीं कर सकता, दिस इज द कैलकुलेटेड वैल्यू। तो इतने एटम्स आ रहे हैं, तो इसी को हम लोग बार बार AMU करेंगे और बार बार 6.022 × 10⁻23 ये लिखेंगे। इसको हमने कह दिया भाई आज से ये जो नंबर है इसको हम बोलेंगे मोल, 1 मोल। कि भाई अगर मैग्नीशियम का मास 24 AMU है तो 24 ग्राम मैग्नीशियम के अंदर 1 मोल एटम्स होंगे। कि भाई अगर कार्बन का मास 12 AMU है तो 12 ग्राम कार्बन के अंदर जो एटम्स होंगे वो 1 मोल होंगे। समझ में आया? पक्का? ओके, लेट्स मूव फर्दर। सो यही हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि 12 ग्राम कार्बन के अंदर जो मास आ रहा है हमारे पास दैट इज़ 1.99, मतलब करके देखा हम लोगों ने, एक्सपेरिमेंट करके पता लगाया कि भाई 23 ग्राम में इतने आइटम्स आ रहे हैं। सब जगह हमने चेक करके देखा और हम लोगों ने बार बार बोला। और ये किसने की थी कैलकुलेशन? दिस कैलकुलेशन वाज डन बाय एवोगैड्रो। किसने की थी ये कैलकुलेशन? एवोगैड्रो ने। दैट्स वाई दिस नंबर इज नोन एज एवोगैड्रोज नंबर। इसको हम लोग एवोगैड्रोज नंबर बोलते हैं। वी जस्ट कम हियर दैट वी फाइंड दैट द 1 मोल इट इज़ द नंबर दैट इज in which the number of atoms present in 12 gram of carbon atoms, or we can say that that is equals to 6.022 × 10⁻23. Okay, 1 mole is a number which is equivalent to 6.022 × 10⁻23. Got it? So that is the number that is represented by the mole. Okay, got it. So let's move further and let's understand the difference between the molecular weight and the gram molecular weight. Okay, gram molecular weight, or we can say that molar mass and the atomic mass. These two terms have significant has specified meaning, and you can easily understand these two also. That what is the difference between the gram molecular mass and molar mass? What's the difference between the gram molecular mass and the molar mass? Tell me. What is the difference between the gram molecular mass and the molar mass? Do you have any idea? Does the words has its own meaning? Gram molar mass and the atomic mass. Gram molar mass and the atomic mass means gram molar mass. The word gram means that it will be in grams. First of all, the gram atomic mass or gram molar mass, or we can simply say that molar mass, they are same things. Okay, gram atomic mass or molar mass are the same thing.
first of all, if I'm saying that molar mass, it means the mass of 1 mole. Okay, if I'm saying that, so it will be the mass of 1 mole. Okay, so you need to understood here that the gram molar mass is the mass of 1 mole of atoms, and I have told you recently that the gram or molar mass simply, the gram molar mass simply means that the mass of 1 mole of carbon atoms. Okay, or we can simply that it will be the mass of 1 mole substance. Okay, एक मोल सब्सटेंस का जितना भी मास होगा उसको हम लोग उसका ग्राम मोलर मास कहेंगे. और क्योंकि एक मोल अपना आप में एक बहुत बड़ा नंबर है, दैट इज 6.022 × 10⁻23. सो इतने एटम्स अगर किसी के अंदर होंगे तो भाई जाहिर सी बात है, इतने एटम अगर किसी के अंदर है तो जाहिर सी बात है उसका मास ग्राम में ही होगा. ये बहुत बड़ा नंबर है 6.022 × 10⁻23. ये फिजिबल है कि इतने सारे एटम्स अगर होंगे तो उसका मास ग्राम में कन्वर्ट हो ही जाएगा. सो ग्राम मोलर मास यानी कि मास ऑफ एक मोल एटम्स का मास जो होगा उसको हम लोग ग्राम मोलर मास बोलते हैं. और सबसे बड़ी बात ये है कि एक मोल एटम, एक मोल यानी ये नंबर जो है वो ये एक ऐसा जादुई नंबर है जो एटॉमिक मास को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है उसके मोलर मास में, और वो भी ग्राम में कन्वर्ट करेगा. मतलब अगर मैंने बोला कार्बन का मास कितना है 12 AMU, कार्बन का एक एटम का मास 12 AMU, तो भाई उसका मोलर मास कितना होगा या ग्राम मोलर मास कितना होगा? मोलर मास भी बोल सकते हो, ग्राम मोलर मास भी बोल सकते हो, जो तुम्हारा दिल चाहे. तो उसका मोलर मास कितना होगा? दैट विल बी 12 ग्राम. अगर मैं बोल रहा हूँ कि नाइट्रोजन का एक एटम का मास दैट इज 14 है, तो भाई 14 ग्राम जो होगा उसका मोलर मास होगा, जिसमें 1 मोल एटम प्रेजेंट होंगे. समझ में आया? सो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा कंपैरिजन है यहाँ पे कि द एटॉमिक मास, ठीक है, द मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल. ठीक है, एक एटम का मास होता है और इट्स यूनिट इज़ AMU. मतलब उसकी यूनिट जो होती है वो कितनी होती है? AMU होती है, एटॉमिक मास यूनिट होती है. समझ में आया? ठीक है. उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो यूनिट होती है, इसकी तो यूनिट AMU होती है, AMU में मेजर करते हैं. इसकी यूनिट हम लोग ग्राम में मेजर करते हैं. ये एक सिंगल एटम का मास होता है, इसमें कितने होते हैं? 1 मोल एटम होते हैं. 6.022 × 10⁻23 एटम्स होते हैं. इसको हम लोग AMU में मेजर करेंगे, इसको हम लोग ग्राम में मेजर करेंगे. ठीक है. एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1 AMU एग्जाम्पल के तौर पे, तो द मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1 ग्राम. और इसमें भी मॉलिक्यूल है कि अगर हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ तो हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ तो मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? 2 AMU, बिकॉज दे आर द 2 हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट. सो इसका मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 2 AMU. अब मैं बोलूँगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है हाइड्रोजन का, तो 2 ग्राम. ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, दोनों का अलग अलग मीनिंग है. एटॉमिक मास मतलब, ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या हुआ? ग्राम भी है और एटॉमिक भी है. तो ग्राम मतलब ग्राम में होना चाहिए और एटम का होना चाहिए, यानी ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 ग्राम. ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज 2 ग्राम, दैट इज H2. मॉलिक्यूलर मास मतलब मॉलिक्यूल का मास, दैट इज हाइड्रोजन कैसा मॉलिक्यूल बनाता है? H2 बनाता है. और ये कैसा बनाता है? ये बनाता है हाइड्रोजन. एटम की बात कर रहा हूँ तो दिस इज ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास. तो हम प्रैक्टिस करेंगे ना तो थोड़ा सा और कन्फ्यूजन क्रिएट जो हो रहा है ना, थोड़ा बहुत अगर ये सब चीज़ें मशअप हो रही है तुम्हारे दिमाग में एक तरह से, सो उसको हम लोग कर सकते हैं. 1 मिनट बचा है तो दोबारा से हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं. ठीक है, चलो ज्वाइन करना दोबारा से उसी आईडी से. सो हेयर वी हैव रिटन दैट द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 ग्राम, ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज 2 grams. सो हम लोगों ने सब लिख रखा है. ओके, वी हैव रिटन हेयर एवरीथिंग. ओके, सो लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं. 1 मोल का मतलब मैं फिर से बताता हूँ, 1 मोल इज इक्वल टू दिस 1 होता है. अब नंबर ऑफ मोल्स अगर हम लोग को निकालने हों तो हमेशा 1 तो नहीं होगा ना भाई. मैं बोल रहा हूँ कि 12 ग्राम कार्बन के अंदर, अगर मैं बोल रहा हूँ तुमसे कि 12 ग्राम कार्बन में 1 मोल होता है, तो बताइए 3 ग्राम कार्बन में कितना होगा, या 6 ग्राम कार्बन में कितना होगा, या 24 ग्राम कार्बन में कितने मोल होंगे, या 50 ग्राम कार्बन में कितने मोल होंगे. हमेशा हमने बोला 12 ग्राम में 1 मोल होगा, क्योंकि 12 उसका AMU है, एटॉमिक मास होता है 12 AMU. सो 12 कॉमन नंबर हो गया कार्बन के लिए. तो 12 से 12 ग्राम में जाओगे तो 1 मोल हो गया. तो 1 मोल
12 ग्राम का होता है, तो बताओ 3 ग्राम में कितने मोल होंगे? सो 1 मोल का मतलब हुआ 6.022 × 10⁻23 एटम्स। 3 ग्राम में कितने एटम्स होंगे, कितने मोल होंगे? तो सिंपली क्या करोगे आप, इसको 3 बनाने के लिए क्या करोगे? व्हाट यू विल डू टू मेक इट 3? यू हैव टू डिवाइड इट बाय 4। यू हैव टू क्या हुआ? तो आपने किया क्या, आपने देखा कि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स जो हमारे पास आए हैं वो कैसे आए? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू जो आपको मास गिवन था वो आपने यहाँ रखा ग्राम, और उसका मोलर मास आपने यहाँ रखा ग्राम मोलर मास, या मोलर मास भी बात बोल सकते हो, क्योंकि मोलर मतलब मोल का मास, मोलर मास जो होता है वो होता है। तो जो भी आपको गिवन वेट था वो आपने यहाँ रखा और अपॉन मोलर मास यहाँ रखा, और दैट यू फाइंड दैट कि 3 मतलब आपने देखा कि 3 ग्राम में और अपॉन 12 ग्राम डिवाइड किया, यू विल फाइंड 1/4 मोल, यानी कि आपको 1/4 मोल मिल जाएंगे। सो ये नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका हो गया कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन जो होंगे हमारे पास, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन बाय गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मोलिकुलर मास. But I am writing here gram. Why I am not writing here in only the atomic mass or the molar mass? Because gram molecular mass is always in grams, but the atomic mass is in mu, or the molar mass is molecular mass is in mu. So we have to write here gram. Okay, got it? Okay, number of particles now. Now if you have the number of moles, then to find the number of particles you need to multiply it by 6.022 10 to the power 23. For example, if I am saying 1 mole is equals to 6.022 to 10 to the power 23. Okay, if I am saying 1 mole is equals to 6.022 into 10 to the power 23 atoms और particles और something जो भी पूछा गया क्वेश्चन में. So भाई 2 moles में कितने होंगे? 2 into 6.022 to 10 to the power 23. ठीक है. उसके बाद 3.5 में कितना होंगे? तो 0.5 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10 पावर 6.022 इंटू 10 पावर 23. होंगे कि नहीं होंगे? बोलो, समझ में आया? होंगे ना? सो भाई यही चीज़ है कि 0.5 मोल में इतने, 1 मोल में इतने हैं, तो 0.5 में उसका मल्टीपल. तो ये 6.022 10 पावर 23 बार बार है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एन ए बोलते हैं, एवोगाड्रोस नंबर. ठीक है. सो ऊपर वाले फॉर्मूले को और इस वाले फॉर्मूले को आप कंबाइन भी कर सकते हैं डायरेक्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स में करने के लिए, कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग? गिवन मास अपॉन गिवन मास को हम लोग लिखते हैं WB, मोलर मास को लिखते हैं हम लोग MB इंटू NA, एवोगाड्रोस नंबर. गॉट इट? श्योर? पक्का समझ आया कि हवा में तो नहीं जा रहा है ना? ओके, लेट्स मूव फर्दर. तो डिवाइड कर दिया हमने. लेट्स मूव फर्दर. क्वेश्चन आया हमारे पास, कैलकुलेट द मास ऑफ 1.5 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड. कैलकुलेट द मास ऑफ, इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन, यू नीड टू कैलकुलेट. सो व्हाट वुड बी द आंसर? ओके, सो हमारे पास यहाँ पर आया है कि द कैलकुलेट करना है हम लोग को मास. ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का, जो कि H2SO4 दे रखा है. तो पहले हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास कैलकुलेट कर लेंगे. ये हमें पता होना चाहिए H2SO4 का कितना होता है? 98 होता है. 2 हाइड्रोजन का, 32 सल्फर का और 4 ऑक्सीजन के एटम है. सो एक ऑक्सीजन एटम का 16 होता है, तो 4 का कितना होगा? दैट विल बी 64. सो यू हैव टू राइट हियर 64, देन यू ऐड ऑल दिस, यू विल गेट 98. सो द नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू ऑब्टेन वेट. वी यूज टू राइट हियर गिवन वेट अपॉन मोलर मास, मोलर मास और ग्राम मोलर मास. But this time the weight is not being given to you, so I can write here obtained mass. Okay, so here the number of moles is being given to you, so that is 1.5 upon molar mass of H2SO4, that is 98. When you multiply this one, you will get 147. This will be the obtained mass. Got it? Okay, let's move further. Calculate the actual mass of one molecule of carbon dioxide in grams. Actual mass of one molecule of CO2 in grams. You need to calculate the actual mass of one molecule of CO2. How will you be able to calculate this one? The 44 is the molar mass of CO2. You have seen here 44 grams. Okay,
but you know that this 44 grams is going to have how many molecule of carbon dioxide. If I'm saying molar mass, it is the molar mass, so it will be going to have 6.022 into 10 to the power 23 molecule of CO2. ओके 44 ग्राम्स है, वो बहुत बड़ा नंबर होता है 44 ग्राम्स, अच्छा खासा बना 44 ग्राम्स। अच्छा हाँ बेटा, सबको मिला करके हो ना, कार्बन डाइऑक्साइड C+O2, तो कार्बन इज गोइंग टू हैव 12 and oxygen is going to have 32. Means one oxygen is going to have 16, so two oxygen will going to have the 32 mass, so this will be 44. Okay, got it? 44. So 44 is the, if it is in gram, so it will be the molar mass, or I can say it will be equivalent to 6.022 into 10 to the power 23 carbon dioxide molecules. Means when we have this CO2 molecule, that's, and these CO2 molecules numbers will be 6.022 times power 23, then it will weight it will weight 44 grams. So in 44 grams we have 6.022 times power 23 carbon dioxide molecules. So हमसे क्वेश्चन है पूछा गया कि बताइए ग्राम्स में, बताइए कि एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, एक मॉलिक्यूल का कितना वेट होगा ग्राम्स में, कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल का एक्यूरेट, मतलब हमने एक्चुअल मास बताना है कि एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल कितना होगा। तो जो चीज़ हम लोग को निकालनी है वो हम लोग को हमेशा राइट हैंड साइड लिखनी चाहिए। ठीक है, हम लोग को क्या निकालना है, मास निकालना है कि मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। तो हम लोग को एक्चुअल में मास निकालना है, कितने मॉलिक्यूल का, एक का। तो हम लोग लिखेंगे इस तरह से इसको, किसी भी चीज़ को लिखने के दो तरीके होते हैं। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यू कैन राइट लाइक दिस वे दैट 44 grams is equals to 6.022 into 10 to the power 23, or you can also write it like 6.022 into 10 to the power 23 is equals to 44 grams. So लिखने का सही तरीका ये है कि जो चीज़ आपसे पूछी गई है उसको आप इधर लिखें। तो आपसे ग्राम्स में पूछा गया है, मतलब आपसे वेट पूछा गया है, तो एक्चुअली आप इसको इस तरह से लिखें। तो इतने मॉलिक्यूल्स का 44 ग्राम वेट होता है, तो इसको 1 करने के लिए क्या करेंगे, इसी नंबर से डिवाइड। तो इधर भी आप उसी नंबर से डिवाइड कर दीजिए, सॉरी उधर भी आप इसी नंबर से डिवाइड कर दीजिए, दैट इज 6.022 इंटू 10 to the power 23। तो ये कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे, ये 1 मॉलिक्यूल हो जाएगा, क्योंकि इससे आप डिवाइड किया। तो 44 ग्राम्स को भी आप इससे डिवाइड कर दीजिए, वट एवर यू आंसर गेट, यू विल गेट 7.304 इंटू 10 to the power -23 विल बी द एक्चुअल मास होगा एक उस मॉलिक्यूल का। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि आपसे नंबर ऑफ मोल्स गिवन है आपको 1, ऑब्टेन मास आपको निकालना है। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फार्मूला था ना हमारे पास अभी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू ऑब्टेन मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर। यहाँ पे लिखा था, अभी हम लोग ये पीछे लिखा था नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फार्मूला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर। तो अभी नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, हमें एक पार्टिकल का ऑब्टेन करना है मास। तो एक पार्टिकल लिखेंगे यहाँ पर, डब्ल्यू भी रखेंगे यहाँ पर, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, विल गेट द आंसर। सो कैसे भी आप कर सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे, जैसे आपका दिल चाहे। गॉट इट? पक्का समझ में आया? सो मैं ये पीपीटी आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो इस पीपीटी को आपको सॉल्व करना है, और जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो भी करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतने 11 बज चुके हैं, ठीक है। तो 11 बजे तक क्लास हुआ करेगी इंडिया के, ऐसे लेट नहीं, ठीक है। चलो आज के लिए इतने काफ़ी, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।